پی ٹی آئی رہنما بریگیڈیئر جاوید اکرم کے اعزاز میں گلاسکو میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جسے رپورٹ کر رہے ہمارے نمائندے شاہد میر۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم ان دنوں اسکاٹ لینڈ کے دورے پر ہیں۔ ان کے اعزاز میں پی ٹی آئی کے سابقہ مقامی صدر میاں علی احمد صوفی کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ جاوید اکرم نے اپنے خطاب میں کہا، ساری قوم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اگر بھارت نے کوئی شرارت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ جتنا بڑا چیلنج آج پاکستان کو ہے کشمیر کے بارے میں، وہ بھی اس سے بڑا چیلنج کبھی نہیں ہوا، لیکن ہم ایک پرامن حاکم ملک ہیں اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے اللہ سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ مودی چونکہ اس کا نظریہ نازی پارٹی کا ہے، آر ایس ایس کا ہے، اس نے پہلے بھی بہت خون بہایا ہے، گجرات میں بابری مسجد میں اور پلوامہ میں ڈرامہ رچایا ہے، اور اب بھی وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول روکنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم پوری پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ اور انفیکٹ پوری پاکستانی کمیونٹی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک ان کا ساتھ دیں گے، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس وقت پوری جو کشمیر کے مسلمان ہیں یکجان ہیں، وہ پارٹیاں جو پہلے انڈیا کے ساتھ رہنے پہ رضامند تھی، مثلا محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد، اب سبھی انڈیا کی محافظت کر رہے ہیں۔ تقریب سے علی احمد صوفی، گورنر پنجاب چودھری سرور کے کوارڈینیٹر طاہر انعام شیخ، خالد جاوید اور سمیر رانا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستانی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، کشمیریوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد میر، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ برطانیہ بھر میں موسم گرما میں رنگا رنگ میلے سجائے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے برسٹل کے علاقے ایسٹرن ایسٹ ویل پارک میں بھی مسلم اسلامک کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تنویر بخاری کی یہ رپورٹ۔ برسٹل مسلم کلچرل سوسائٹی کے زیر اہتمام 20واں سالانہ مسلم کلچرل فن فیئر سجایا گیا، جس میں پاکستانیوں سمیت ہزاروں ایشیائی اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ شامل ہوئے۔ بچوں نے جھولے جھولے جبکہ خواتین نے سٹال سے شاپنگ کی۔ تقریب میں یوتھ فٹ بال، بچوں کے ٹیلنٹ شو اور منی اولمپکس میں اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ I believe this is a very good event because it is about us and our culture, and it gives other people from other cultures a chance to come and learn about us and how we live our lives. Welcome you all. Mashallah, it's a good opportunity for us as a community to share our culture and the positive sides of this blessed religion we've been given by the Almighty. I request you all to inshallah come and enjoy, and remember this is our 20th year and it's a good opportunity for us to thank all our volunteers, the management and all those people that have put time and effort into this event to make it happen. مختلف لوگ آتے ہیں اور یہاں پر بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، منی اولمپکس، منی نشید کانٹیسٹ۔ ماشاءاللہ، ویلکم ٹو اسلامک کلچر فیئر۔ یہ ہماری 20 اینیورسری ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کے تعداد آتے ہیں لوگ یہاں، as far as سوانزی سے، برمنگھم سے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے والنٹیئر ہیں۔ ایوریبڈی سے اسلام۔ مختلف قسم کے سٹالز، چٹپٹے کھانے، آئس کریم، جلیبی، دہی بھلے، سموسے، پکوڑے، کباب سے عوام لطف اندوز ہوتے رہے۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ برمنگھم میں پاکستان کے علاقے سہاوا کے ضرورت مند اور یتیم بچوں کے تعلیمی اخراجات جمع کرنے کے لیے چیریٹی کی تقریب ہوئی، جس میں لوگوں نے دل کھول کر عطیات جمع کروائے۔ اس دوران برٹش پاکستانی سنگر شہزادی سلطان نے اپنی پرفارمنس سے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی نیاد برطانوی گلوکارہ شہزادی سلطان نے اپنے مرحوم والد کے نام پر ایک خیراتی ادارے کی بنیاد رکھی ہے، جو ان کے آبائی علاقے سوہا کے ضرورت مند بچوں کو معیاری تعلیم اور کھانا فراہم کرتا ہے۔ اسی ادارے کے تحت ایک چیریٹی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے۔ برطانیہ بھر میں عبدالعزیز پروجیکٹ کے زیر اہتمام چیریٹی ایونٹ منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں شہزادی سلطان لائیو پرفارمنس کر کے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے صرف کرتی ہیں۔ برمنگھم میں ہونے والی اس تقریب کے موقع پر شہزادی سلطان، محمد بشارت، پیمیلا اشرف، سائقہ جبین، پروین اختر، رانی عارف اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کے دوران کہا ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقوں میں غریب و نادار بچوں کی تعلیم کے لیے کردار ادا کریں۔ کافی لوگ آئے ہیں یہاں، it's just amazing, it's a house full. I wasn't expecting this. Thanks to the MMI team who's supporting this, and thanks to everybody. What an absolutely wonderful turnout we had. It's an absolute house full.
in only 3 weeks' notice. And the credit goes out to you, the community, for supporting us in numbers. Can I congratulate Shehzadi for a wonderful cause, noble, worthy cause she's doing. बहुत से पाकिस्तान में गरीब नादार लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और हम यहाँ रहकर, हम पाकिस्तान में तो नहीं होते हैं लेकिन हम यहाँ रहकर उन लोगों की इस तरह से हेल्प कर सकते हैं. And of course the hospitality, and so thank you very much everyone for coming, and please keep on supporting the orphanage because they need our help and support. Supporting a very worthwhile cause in support of the Abdul Aziz project, and supporting the MMI Foundation, Melody Masters International, will come together as a community group to enjoy and celebrate. All the entertainment, they're really brilliant, so everybody's enjoying live shows, and we come to support everyone, and we'll be here all the while until the program is finished. हमने मैनचेस्टर में बहुत बड़ा इवेंट किया था, जो उसके बाद बर्मिंघम में है, और इसके बाद हम लंदन में जाएंगे. ये एक बहुत बड़ा कॉज है, और ये एक ऑर्फनेज है यतीम बच्चों के लिए. इस दौरान पाकिस्तानी मलबूसात मुतारिफ करवाने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए और पाकिस्तानी गानों पर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा भी किया. वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के एजाज़ में पेरिस के नवाही इलाके बारबले में ज़ुहराने का एहतमाम किया गया. फवाद चौधरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमती तरजीहात में शामिल है. राजा हबीब की ये रिपोर्ट. वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के एजाज़ में पेरिस के नवाही इलाके हार्बले में मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी ताहिर रज़ाक की जानिब से ज़ुहराना दिया गया, जिसमें फ्रांस में मुकीम कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुईं. इस मौके पर शुरका ने समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल बारे फवाद चौधरी को आगाह किया, जिस पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि इन मसाइल का हल हुकूमती तरजीहात में शामिल है. जो पाकिस्तान के अंदर, एक तो मैं ये कहूँगा कि रेमिटेंसेस जो हैं वो कानूनी तरीके से भिजवाएं, हवाला और वो जो दूसरे पुराने ज़राए थे वो अब इनकरेज नहीं हो रहे, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं. दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब भी ज़मीनों की ख़रीदारी करें उसके ऊपर अपना वकील हायर करें, और वकील जो है उसको कहें कि वो पूरी सेटिस्फेक्शन करे कि जो टाइटल है ज़मीन का वो क्लियर है या नहीं क्लियर है. और तीसरा ये कि जो PTI की हुकूमत है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बड़ा वैल्यू करती है. हमने अभी भी बिल मूव कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए. वोट के हक़ के लिए आपको मालूम है हमारी बहुत लंबी जदोजहद रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये वोट के बाद अब हम इलेक्शन लड़ने का हक़ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दे रहे हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक अहम मसला ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड है. अक्सर लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड फॉर्म पुर करते हुए इन्हें पेचीदगियों का सामना रहता है, जिन्हें ख़त्म करने के लिए IT माहिर की ज़रूरत है. इस इशू पर जब सफारत खाने में नादरा डेस्क के क़याम का सवाल और मुतालबा किया गया तो फवाद चौधरी ने खरा सा जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इनको तनख्वाह किधर से देगी. हुकूमत कितनी तनख्वाह देगी. तकरीब के मेज़बान चौधरी ताहिर रज़ाक का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल बारे संजीदा दिखाई देती है. मैंने जी चौधरी फवाद साहब से हमने बात की है कि पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में उनके हल का कोई बंदोबस्त हो सकता है. तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान में किसी का अगर ज़मीन का कोई मसला है, कोई शनाख्ती कार्ड का मसला है, या कोई भी जायदाद का किसी किस्म का कोई मसला है, वो PTI की हुकूमत जो है वो इसको हल करेगी. तहरीक इंसाफ की हुकूमत समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल कर पाएगी या नहीं, ताहम ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत से खासी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं. कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, फ्रांस. लंदन के इलाके हाई वैकम में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई. शुरका ने आज़ादी की खुशियों को मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के नाम करते हुए उनकी आज़ादी की दुआएं की. वसीम काज़मी की यह रिपोर्ट. लंदन के इलाका हाई वैकम के मैकल फील्ड्स कम्युनिटी सेंटर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की. तकरीब के ऑर्गेनाइजर नईम ताहिर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा. इस मौके पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया और वतन अज़ीज़ की खुशहाली और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की गईं. शुरका ने 2 मिनट तक खामोशी इख्तियार करके कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी किया. तकरीब में मेयर ऑफ हाई वैकम कौंसलर मुजम्मिल हुसैन, मेयर ऑफ चश्म कौंसलर कैसर चौधरी, डिप्टी मेयर चौधरी तुफैल, कौंसलर राजा ज़िया अहमद, कौंसलर माजिद हुसैन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की. सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की अवाम, पूरे पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी मुबारक. उसके साथ जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हालत है उस पर भी हमें तवज्जो देनी है, और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे UK और यूरोप में और पाकिस्तान में कहीं भी हैं, हम सबको यूनाइट होना है. Every day is a black day,
जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, उन लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो नहीं मिल जाता, उनको जो 370 लगाया गया या उनको नज़रबंद किया गया है, घरों में कर्फ्यू लगाया गया, जब तक उसको हटा नहीं लिया जाता, उनको पानी, खुराक और हर चीज़ मुहैया नहीं होती, तब तक मैं समझता हूँ मेरे लिए हर दिन जो है वो एक काला दिन है, ब्लैक डे है। जश्न आज़ादी मुबारक भी हो। और कश्मीर का इशू बहुत, वैसे मैं क्या कह सकती हूँ कि दिल पे तकलीफ है। मैं ख़ुद कश्मीरी नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश बॉर्न हूँ, लेकिन मुझे उनकी तकलीफ़ महसूस होती है। मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो वो माएँ जो वहाँ पे हैं, माँ बाप जो तकलीफ़ में हैं, उन सब के लिए हमें एज UK सिटीजन्स कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं सब पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि बहुत जल्द हम कश्मीर की भी आज़ादी इसी तरह ही मनाएंगे, सब इकट्ठे होके। कश्मीर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है इस वक्त, हम सबको यूनाइट होके और कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पे UK में इस इशू को हाईलाइट करें। आज ही हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी यहाँ हाईवे में मना रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर हमें इसका एहसास करना है तो आज हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों को देखें और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को देखें। शुरका ने कहा वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इस मौके पर शान आरा बेगम ने खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया। आखिर में केक भी काटा गया और अगले बरस तक जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर अंदाज में इजहार किया। नदीम सुलहरी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई। शदीद गर्मी के बावजूद शुरका का जज्बा हुबल वतनी देखने से ताल्लुक रखता था। नुमान खालिद, हैदर अफजल, सादिया मलिक, मलाइका फैसल और फाइजा जावेद ने अपनी आवाज़ों के जादू जगाकर लोगों से दाद वसूल की। मंचले भी ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आए। ब्रुकलिन मेले में सिख कम्युनिटी के रहनुमा भी शरीक हुए, जिन्होंने पाकिस्तानी नगमों पर भंगड़े डाले। सिख रहनुमा बचन सिंह ने स्टेज पर आकर खालिस्तान कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। तकरीबात का इनेकाद इस बात की अकास है कि दियारे गैर में होने के बावजूद पाकिस्तानियों के दिल वतन अजीज के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब फ्रैंकफर्ट हारहाइम में मुनक्किद की गई। कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लोगों की एक बड़ी तादाद ने फैमिलीज के हमरा तकरीब में शिरकत की। असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी गुज़श्ता 3 दहाइयों से फ्रैंकफर्ट में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का एहतमाम करती चली आ रही है। इस साल भी यौम आज़ादी की तकरीब में हाल मर्दो ख़वातीन और बच्चों से खचाखच भर गया। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी एजाज अहमद ने अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक के बाद स्टेज पर मौजूद बच्चों ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर कौमी तराना पढ़ा। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी सैयद वजीह उल हसन जाफरी, कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर, मैनेजर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट आरिफ वकास और दूसरे मुकर्रीन ने हाज़रीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। शुएब मंसूर ने हाज़रीन से अपील की कि वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हर फोरम पर मदद करने और इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मकामी मीडिया और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं और कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएँ। ईद और जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आजकल के जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं और कश्मीर में जो जुल्म चल रहा है उसके हवाले से हम बहुत अफसरदा हैं। जब तक हम यूरोपियन कम्युनिटी को, यूरोपियन जो मीडिया है उसमें कश्मीर के ज़ुल्म सितम का जिक्र नहीं करेंगे, उनकी ज़ुबान में नहीं करेंगे, तो हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान एसोसिएशन फ्रैंकफर्ट के तहत यहाँ फ्रैंकफर्ट में 14 ये आज़ादी का दिन मना रहे हैं। जिस तरह कश्मीर के अंदर ये भारत जुल्म और बर्बरियत कर रहा है तो उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। आज ये जो फ्रैंकफर्ट में 14 अगस्त ब्लैक डे और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो फंक्शन हुआ है, मैं बहसीत मेहमान यहाँ फ्रैंकफर्ट में आया हुआ हूँ। मैं पाकिस्तानियों के इस जज्बे को देखकर उनका सलाम पेश करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये कश्मीर आज़ाद होगा और आज़ाद होकर रहेगा। मकबूजा कश्मीर में जारी हालिया कशीदगी के पेश नज़र इस साल यौम आज़ादी की यह तकरीब कश्मीरी बहन भाइयों के नाम से मंसूब करते हुए इंतहाई सादगी से मनाई गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।